अब टॉप आइटम्स बताओ जो आप सजेस्ट करोगे दीदी की फोकस पॉइंट्स सो दैट स्टूडेंट्स गेट 80 प्लस इन ऑडिट. क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? So hello guys, we have with us Pregat Goel, All India Rank 5 in CA Final November 2020, and he had secured All India Rank 8 in his inter examination. He had done his articleship from PwC and had secured 81 marks in his CA Final August paper, which happens to be highest across the nation. Welcome Pregat, great. मतलब 81 marks in audit paper is something unbelievable. Anything above 80 in audit is amazing. So we are here to discuss about how did he achieve this feat and what were the preparation strategies that he followed. So shall we start? Sure. Yeah. So Pregat, my first question to you is like, what are the study resources that you refer to? कहाँ से पढ़ा था आपने study materials, resources and all? And is self study sufficient? कि tuition जरूरी है? So I had done majority of my studies from Pankaj Garg's book. So basically all of my studies were from there only, and I did take someone's class, but I didn't like the class so much, so I left it in like after 5 to 10 classes only. So I had done मतलब मैंने self ही करा था, so even I'll ask other people to do it self only. But keeping in mind that I had done my articleship in audit, so it did help a lot. So like if you're not from audit background, maybe that you're not able, you're not really comfortable. So you have to keep that in mind for yourself too. Okay, तो स्टडी रिसोर्सेज आपने पंकज गर्ग सर का बुक रेफर करा और पढ़ाई खुद से की थी. And what is the importance of ICAI study material, the RTPs, MTPs, and other resources provided by ICAI for your preparations? So see, ICAI study materials are very important, but the thing which happened with me was that जब आप सीनियर्स वगैरह के पास जाते हो ना, तो कोई वो रेफर नहीं कर रहा होता ICAI स्टडी मटेरियल. सो इन दिल्ली एरिया, सो देयर इज अ कल्चर की ना पंकज सर की क्वेश्चनर की बुक है, वो कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई डिडंट like keep study material on priority. So I didn't, until मतलब एग्जाम से 5-6 दिन पहले मेरे को पता भी नहीं था कि स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आरटीपीज एमटीपीज उस वक्त लाइक अटेम्प्ट करके नहीं देखे थे. सो जब अटेम्प्ट करे तब पता चला कि मतलब स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कि पंकज गर्ग सर की बुक, इट डजंट कवर एवरीथिंग. So every teacher, he cuts out a little bit information, because he knows that this is not being asked by ICAI so for so many attempts or something, so it might not be important. So ICAI study material is very important, but I'll suggest it only if you have too much time. If you have time, I'll suggest that if you are in the beginning of your preparations, and if you think that you can devote 10 days to that, so you should definitely do study material. And I'll suggest that what you should do is that when you read the study material, do mark out the items that are being left out in Pankaj Garg's book. So, and if you see that those those topics are being asked in exams, like in the past attempts or something, so do mark them and do revise them. If they are not being asked, so I'll suggest that you can leave them, because अगर आ ही नहीं रहा एग्जाम में तो कोई पॉइंट नहीं है ना फिर उसके ऊपर आप इतना स्ट्रेस करो. और दूसरा एक आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी किसी भी टॉपिक की देखकर, कि मतलब क्या वो रियल लाइफ में होती है वो चीजें. अगर वो रियल लाइफ में होती होंगी तो फिर वो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली हो जाएगी. अगर नहीं होगी तो वो सिर्फ आपको बस एक बार देखना है, एक बार गो थ्रू करना है. यू डू नॉट हैव टू कीप दैट इन योर सेकंड रिविजन ऑल्सो. So just go through the book once, and in second revision you can leave out a lot of items. Keep coming to RTPs and MTPs. I'll suggest that RTPs and MTPs are really very important. So like you should not even think of skipping that. No matter for MTPs, at least you should try to write it down. For RTPs, you can say that I don't want to do that. I don't want to write the answers. But for MTP especially, you should write down the answers. So those are very important for me. Study material, it depends on how much time you have. But I'll do suggest that you do read once. But obviously, you can cut down. If you want to skip, it will be okay. आपने बहुत सही बोला, बिकॉज इवन आई हैड स्टडीड फ्रॉम स्टडी मटेरियल, बट वो बहुत वॉल्यूमिनस है. सो होता क्या है कि और हाँ, उसका एक समरी अलग से बनाते हैं. मतलब मेरे को एक अलग से पूरा समरी बनाना पड़ा था उसका सेल्फ का. एग्जैक्टली. तो मैंने पढ़ा उसी से था, बट लास्ट डे रिवीजन के लिए बिकम्स डिफिकल्ट. सो इट इज इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू हैव योर ओन समरी, या फिर कोई रेफरेंस बुक से पढ़ के उसमें मार्क कर लो कि क्या वहां पे कवर नहीं, खाली वो देख लो. So one approach you can do is that कि जैसे पंकज गर्ग सर की फ्लो चार्ट की बुक आती है, समरी चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम. सो आप उस समरी चार्ट के अंदर आप मार्क कर लो कि इसके अंदर लाइक
क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या कवर्ड नहीं है। सो आपको समरी चार्ट से कंपैरिजन हो जाएगा काफी। तो आप ऐसे कंपेयर कर लो, और डेफिनेटली फर्स्ट रीड के अंदर ही आप ऑडिट की बुक्स रखो। सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन के लिए तो आई नेवर सजेस्ट कि आप ऑडिट की बुक खोल के भी देखो। मतलब अगर आपको कोई पॉइंट भी दिख रहा है तो आप कहीं पे नोट करके रख लो कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बट डू नॉट ओपन दैट बुक बिकॉज यू नो इट इज सो, मतलब इतनी मोटी बुक दिख कर ही ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है यार कि कितना पढ़ेंगे यार। मतलब और ये भी लगता है कि क्वेश्चन आंसर अप्रोच ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर जो है मतलब प्रैक्टिस मैनुअल हो गए, आरटीपी, एमकेटी, वो सारे देखने ही चाहिए पास पेपर्स, क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने चाहिए, बट हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर ही देखने चाहिए। आई थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अगर ये कोई भी टॉपिक है तो आपको उसके अंदर पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एसेस है, एसेस के अंदर आप क्वेश्चन आंसर देख के बहुत आसानी से चीजें कर सकते हो। बट द थिंग इज कि जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना, जब आप मेन बुक से पढ़ोगे, तो आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तो मेन बुक से भी वो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर लिया था उसमें तो समरी चार्ट्स के अंदर अगर आप पंकज सर की बुक के अंदर देखोगे तो उसमें टॉपिक वाइज दे रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू आर रीडिंग अ एसे, तो आपको उसके अंदर सबसे पहले क्या देखना है, आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स देखना है कि एक एसे क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या हम मतलब आईसीएन अगर वो ऐसे बनाया है तो वो किस किस पर्पस की वजह से बनाया है। फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स डिफाइन कर रखे होंगे उसने, तो इसका मतलब वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके अंदर जो उन्होंने डिफाइन करके और आप उसका मतलब समझो। उसके बाद फिर आप उसके अंदर लाइक पूरी ऐसी अप्रोच दे रखी है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू रीड अ बेयर एसे, बेयर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सो यू विल अंडरस्टैंड द अप्रोच की मतलब कैसे आईसीआई ने डेवलप करा है, और आप देखोगे कि हर जगह कंसिस्टेंसी है। और जब भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो किसी एक टॉपिक से उठा के पूछ रहा होता है चीजें को, तो आपको वो क्लिक होनी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी इफ यू नो, इफ यू आर एबल टू ग्रास्प दैट। बट अगर आप क्वेश्चन आंसर से पढ़ के देखे जाओगे ना, तो आपको हमेशा वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा कि यार ये कौन से क्वेश्चन से आ रहा है सीधा आंसर इसका। राइट, आप कभी भी कंसेप्ट पे नहीं जा पाओगे, और वहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। राइट। बट क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आई बिलीव कि हाँ बहुत हाँ सारे हाँ, क्वेश्चन रहते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक तो पढ़ने के बाद वो जरूर करना चाहिए, नहीं? बिल्कुल, मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब क्वेश्चन बैंक अगर आप नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है दो चीजों के लिए, स्पेशली ऑडिट के अंदर। एक तो ऑडिट के अंदर क्वेश्चन ही समझ नहीं आते हमें जनरली। मतलब मेरे को ये चीज आईपीसीसी में रियलाइज हो गई थी कि मतलब मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और जो मैं आंसर दे रहा हूँ, उन दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है। because when I used to match my answers with the study material answer, or मतलब board of studies answer, so they didn't used to match, so I used to feel कि मतलब मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ क्या। तो फिर it is very important to read the question answers because first of all it will tell you कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां से डेवलप होगी। दूसरा आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जब आप आंसर्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि आंसर चाह क्या रहा है, कि आप क्या क्या टॉपिक्स को छुओ। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम एसे के आंसर की बात करते हैं, सो आप एक जनरल पैटर्न नोटिस करेंगे कि यू विल हैव टू फर्स्ट राइट द एसेज नेम, then you will have to write the essay's objective which is directly relevant to the question. उसके बाद you have to brief on the topic, then you have to give current circumstances की मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, then conclusion। तो आपको वो पैटर्न वहीं से डेवलप होगा जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे। सो यू कैन नॉट चूज ईदर क्वेश्चन आंसर्स और कंसेप्ट वाइज बुक, यू हैव टू गो फॉर बोथ। राइट। तो प्रेरित, नेक्स्ट चीज है कि इस एसेज कैसे पढ़े अपने, लाइक एसेज सबसे ज्यादा ग्रे एरिया रहता है पूरे प्रिपरेशन, तो एसेज का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? सो सी इसके अंदर तो मैं मतलब मेरी आर्टिकल जब काफी अच्छी रही है तो मेरे को उधर से मतलब सपोर्ट काफी अच्छा मिला उधर, बिकॉज आपको हर एक एसेज वगैरह में मतलब काफी डीप डाइव कर देते हैं हम लोग। सो अगर इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप ऐसा कोई बैकग्राउंड अगर ऑडिट का नहीं है, सो व्हाट यू शुड डू इज दैट again I'll suggest, if you are not like if you are into, if you have 1 year left for a preparation etc, so I'll suggest कि आप एक कोई सा भी ऐसे उठा के देखो, उसका बेर उठा के देखो, ऐसे का एक या दो उठा के देखो आपको ना। और आई डोंट वांट यू टू रीड इट होल, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि एक ऐसे लिखा कैसे जाता है। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक ऐसे के अंदर 5-6 डिफाइंड सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे का नाम, ऑब्जेक्टिव, उसकी डेफिनेशंस, उसके अंदर फिर क्या क्या कंसेप्ट्स है और वो कैसे कंसेप्ट्स को रिजॉल्व कर रहा है। तो आपको ये 4-5 चीजें पता चल जाएगी। और बेसिकली हर एक ऐसे कोई पर्पस डिफाइन कर रहा होता है ऑडिट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको कमियां हटानी होती हैं कि ऑडिट के अंदर क्या क्या ग्रे एरियाज होते हैं वो उसको कवर कर रहा होता है हर एक ऐसे। तो आप उसको जब समझोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से आप अगर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इफ यू हैवंट रेड एनीथिंग, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल कि जहां से आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि कहाँ का रेलेवेंस है कुछ नहीं, तो आप उसको बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी आप उसका आंसर कर पाओगे।
तो आई सजेस्ट कि आप ऐसे, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप एक दो बेर ऐसे उठा के देखो और उसकी आप अंडरस्टैंडिंग ले लो. After that, if to I went to the summary charts for essays directly because मेरी understanding essays में काफी ज्यादा अच्छी थी. So but if अगर आपकी understanding अच्छी नहीं है, so I'll suggest कि आप पहले main book पढ़ लो, चाहे वो ICI का स्टडी मटेरियल हो गया या फिर पंकज सर की बुक हो गई मेन, whatever is your choice. उसके बाद you can, I think ultimately you should skip to summary charts because they are very concise. ये समरी चार्ट कौन सा आप बोल रहे हो, आपने किससे करा था? पंकज सर की समरी चार्ट्स है, तो उनकी Okay. बुक आती है तो you can definitely refer that. Okay. So next question is Prerit, what was your ABC strategy? What were the chapters to focus on? And कैसे अपने मतलब कहाँ पे अपना फोकस डाला था? स्टार्टिंग से एक तो एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 100 मार्क्स के पेपर के अंदर वो आपके 25 से 30 मार्क्स के तो मिनिमम बनेगा. देन प्रोफेशनल एथिक्स अगेन 12 मार्क्स, इट इज श्योर, मतलब श्योर है कि वो आएंगे 12 मार्क के. तो दीज टू चैप्टर्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसी पे सबसे ज्यादा फोकस करा था मैंने. उसके बाद टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट था बिकॉज टैक्स ऑडिट के अंदर दिख गया था कि हर बार 6 मार्क का तो मिनिमम आएगा, चाहे वो थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आए चाहे वो हमारे एमसीक्यूज में आए. After that, there are 4 chapters: banking, insurance, NBFC, and PSU. So I knew कि इन चारों को मिला के at least 8 marks का पेपर में आएगा क्वेश्चन, because at least 2 questions come from मतलब either of the 4 chapters. So you have to cover all 4 because if you even skip one chapter, so it means that you have a chance of getting 4 marks deducted because you won't know the 4 marks. So I'll suggest कि आप ये चारों चैप्टर भी डेफिनेटली करके जाओ बिकॉज आपको 8 से 10 नंबर कोई कंफर्म करके दे रहे हैं तो इट इज नॉट अ बैड थिंग. और बेसिकली ये 4 एरियाज मेरे मेन थे कि मैं इन चारों एरियाज पे ज्यादा फोकस करूं. बाकी हाँ, सो मेरा अगर मेरी ए पार्ट था तो वो उसके अंदर ये तीनों कवर होंगे. और स्टैंडर्ड्स वगैरह के अंदर मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जो चैप्टर्स दे रखे हैं जैसे रिस्क वगैरह है, इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह. सो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो कितनी बार भी पढ़ लो याद तो होते नहीं थे. तो कितनी बार भी पढ़ लो वो बिल्कुल भी याद नहीं होते थे. तो आई सजेस्ट कि आप इन तीनों पे ज्यादा इन चारों पे फोकस करो: टैक्स ऑडिट, essays, professional ethics, and the last 4 chapters. मतलब ये आपके एटलीस्ट बेसिकली 60 मार्क्स बना देंगे कुछ भी करके. So, yeah. और उसमें कीवर्ड्स पे फोकस करके जैसा अपना हाँ कीवर्ड. सो बेसिकली दीज 4 आर द टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन, मतलब 4 to 5 रिवीजन, बिकॉज 2-3 बार तीसरी बार में जाके तो थोड़ा बहुत समझ में आना चालू हो रहा होता है. तो इसलिए आपको मतलब as many readings as possible you should give to those. Not saying that you should read the whole book etc. If you have made notes, that reading those notes again and again is more than sufficient. So yeah, उसके बाद बी कैटेगरी में आई गेस चैप्टर्स सॉरी ई कैटेगरी के अंदर आप चैप्टर इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक और ड्यू डिलिजेंस भी रख सकते हो. बट मैं नहीं पढ़ के जाता था बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आता था वो बिल्कुल भी. सो इसलिए मैं उसे बी में कैटेगरी में डालता हूँ. बट आप इफ यू वांट यू कैन शिफ्ट इट टू ए कैटेगरी आल्सो. सो इन्वेस्टिगेशन and investigation, company audit were my B category part. कि ये उसके बाद अगर बाकी इसके बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट इफ देयर वाज एनीथिंग लेफ्ट सो वो सारा सी कैटेगरी के अंदर आता था. बढ़िया. मतलब हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यूज एंड हाउ डू वी टैकल द एमसीक्यूज इन द पेपर? Okay, so first of all, because we had discussed ABC strategy right now, so I'm just telling people that, in audit, in any paper where there are objective questions involved, like MCQ questions involved, do not, prioritize chapters, do not skip chapters. मतलब आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, बट you should not skip any chapter for that matter because MCQs के अंदर ना बोर्ड ऑफ स्टडीज का भरोसा नहीं होता, वो कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आई गेस कौन सा पीयर रिव्यू एक चैप्टर था. सो पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, सो पीयर रिव्यू, हाँ एग्जैक्टली, पीयर रिव्यू हमारे टाइम में 9 मार्क 8 या 9 मार्क का आई गेस 10 मार्क का एमसीक्यू था. हाँ, तो फर्स्ट सेट एमसीक्यू के अंदर आया था 10 मार्क का, जबकि जो नॉर्मली 4 मार्क का आता है. It is the A category part. I didn't mention that, I forgot. But so peer review is something कि आप 10 मार्क का imagine भी नहीं कर सकते. So if somebody had skipped peer review, he's saying कि यार ये तो 4 मार्क का आता है और इसके लिए मैं इतना कुछ नहीं पढ़ सकता.
So he will lose that portion. So I'll suggest ki for anything, for any subject in which there are MCQs involved, do not leave anything. But obviously you have to strategize for ABC, but you do have to read everything at least once. So after now coming to MCQs, so basically MCQs I used to strategize in the sense, first of all, taking up first exams कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज वगैरह सबसे पहले उठा लिए हमने. यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, जैसा फर्स्ट अपना क्या था, एमसीक्यूज के पहला पेपर रहता है, तो बहुत जने को पता नहीं होता कि वहाँ पे पेन से नहीं मार्क करने का, पेंसिल से मार्क करने का, और फिर वो पेन से मार्क करते एग्जाम में हैसल हो जाता है. तो ये याद रखना कि पेन से मत करना, पेंसिल से करना. मैंने तो पेन से कर दिया था. तो हाँ, ये मेरा भी एक तो प्रॉब्लम हो गया था, तो पहले से पता होना चाहिए. दूसरी बात है कि वहां पे आप सबसे पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करना. क्यों? क्योंकि एमसीक्यू अगर आप कर लेते तो आपका हेडेक खत्म हो गया, आप मतलब खाली सब्जेक्ट पे फोकस करो. नहीं तो होता क्या, बाद में मान लीजिए लिखते लिखते टाइम निकल गया तो आपको वो हैसल में आपको कुछ भी मार्क करना पड़ जाएगा. तो फर्स्ट में अपने को 2 बजे के बाद ही अपने को पेपर में लिखने को मिलता है, तो अपना जो नाम, रोल नंबर जो भी लिखना है वो भी उसी टाइम पे लिखना है. सो आप ये कोशिश करना विद इन 2:30, मतलब विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर कंप्लीट द एमसीक्यू. तो आपका 30 मार्क्स गन है, आपके पास 2.5 घंटे है 70 मार्क्स के लिए. डेफिनेटली. सो बोलिए. सो डेफिनेट आप आधे घंटे के अंदर आप उसको मार्क कर लो. बट मैं वही कह रहा हूँ, आंसर शीट में मत मार्क करना, और जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, आप यू शुड एनसर्कल दैट क्वेश्चन. एंड व्हेन लास्ट, सो माय अप्रोच वाज जनरली कि मैं पहले सारे ऐसे आधे घंटे के अंदर सारे मार्क करता था, एंड फॉर एवरी एमसीक्यू सब्जेक्ट. सो उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर के अंदर जब मेरे पास हाफ एन आवर बचा होता था, सो आई यूज्ड टू कम बैक टू दैट एमसीक्यू. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जो मैंने एनसर्कल कर रखे हैं तो वो मैं उन क्वेश्चंस को देखूं, एंड जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आंसर्स उनके ठीक हैं, या फिर इफ आई हैव नॉट मार्क्ड एनी क्वेश्चन दो आई डेफिनेटली मार्क दैट क्वेश्चन. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप पेपर पढ़ते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे होते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, तब आपको कई चीजें याद आ जाती हैं. तो कुछ टॉपिक क्वेश्चन में ही छुपे हुए होते हैं, कुछ आंसर उसके, तो वो याद आ जाते हैं और वो हेल्प कर जाते हैं कभी कभार हमें आंसर देते हुए. सो आई सजेस्ट कि आप उस चीज को यूटिलाइज करो, आप लास्ट के अंदर आंसर करो और आप फिर उसके बाद आंसर शीट में मार्क करो. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. एंड लाइक जब आप एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हो, सो बेसिकली सिंपल सी स्ट्रैटेजी है. अगर आपको क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर एक तो बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे लीजिए, क्योंकि कभी कभार नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभार पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है. उसके बाद फिर जब हम लोग मार्क कर रहे हैं, आप सबसे पहले जब क्वेश्चन आए तो आप उसको डिसाइड करिए कि आपको वो क्वेश्चन आता है नहीं आता. अगर वो आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसका सोचिए आंसर था क्या, विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस यू गेट कंफ्यूज्ड कि इन चारों में से आपको 2 या 3 ना सही आंसर्स लगने लग जाते हैं. So if you know the question, do not look at the answers, think about the answer, and then see कि वो answer उसमें दे रखा है नहीं दे रखा. And if you're not confident that question, so then you can obviously choose skip to the answers, and then by elimination method or whichever method you prefer. So elimination method basically कि आपको कौन सा लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और फिर आपको अगर coin toss वगैरह करना है तो फिर आप कर सकते हो. लेकिन कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट. हाँ, नेगेटिव एमसीक्यूज के अंदर तो हाँ डेफिनेटली. एंड डू चेक द आंसर कि जब आप आखिरी में मार्क करो कि सारे के सारे आपने, लाइक फॉर एग्जांपल वन थिंग आई यूज्ड टू मेक श्योर एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन पेपर इज कि सारे, फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो आप देख लो कि 27 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, जिस हिसाब से भी. उसके बाद जो आपकी एमसीक्यूज वगैरह की शीट है उसके अंदर आपके सारे 27 तक सारे आंसर्स हैं, और कोई भी बीच में स्किप ना हो रहा हो. वो 1-2 चीजें आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, बिकॉज पहले पेपर में मुझसे गलती होने वाली थी, बस जस्ट बिकॉज कि मैं ये चेक करके चल रहा था हर वक्त, तो वो बच गया. Prerit, coming to the number of revisions and what was the time taken for each revision, आप थोड़ा बताइए ना, कितना बार रिवीजन करा था आपने? So A category stuff I read approx 5 times at least. But whenever I used to pick audit, so audit ना बहुत ही ज्यादा कितनी बार भी कर लो वो पूरा एक बार में सब्जेक्ट नहीं हो पाता, एटलीस्ट मुझसे नहीं हो पाता था. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू ब्रेक इट, कि जैसे फॉर एग्जांपल एसेज एंड प्रोफेशनल एथिक्स आई डू टुगेदर, company audit and part C and part D I'll do together, and then the rest 4 chapters like for example banking, NBFC, insurance, PSU I'll do together. So 3 उसमें ब्रेक कर लिया था. So whenever I used to pick कि वो एक टॉपिक उठा के उसको रिवाइज करना चालू करते थे, फिर चाहे उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में तो आपको टाइम बहुत लगेगा, बिकॉज जैसे क्लासेस भी नहीं ली थी मैंने, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में.
सो उसके बाद फिर आप करोगे तो मतलब जैसे आप जब चार्ट्स पर आ जाओगे, जब आप नोट्स पे स्किप कर जाओगे तो काफी कम टाइम लगेगा. So early first revision, around first reading or first revision, whatever you want to say it as, so it takes around 10 to 12 days at least. At least it took me that time. And after that, so I used to focus on A and B category mostly, not on C category too much. So though that is wrong also, but because I had limited time and I had limited time to do that, so I used to focus on A and B and revise it. So I used to try to make sure that I give a specific amount of time. For example, if essays are there, so I used to make sure कि वो 8 या 10 घंटे में खत्म हो रहे हो. So I used to do it like that. So मतलब आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई 30 मार्क्स का आता है तो आप उतना ही टाइम रिवीजन के अंदर दोगे उसको. तो मतलब फॉर एग्जांपल इफ 3 आवर पेपर है तो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट डे की कैलकुलेशन लेकर चलता था मैं, फॉर एग्जांपल कि आपको लास्ट डे में 36 आवर्स मिलते हैं बिफोर एनी एग्जाम. सो आप 36 में से आप इफेक्टिवली 24 आवर्स ही पढ़ पाते हो. सो 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, आप उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप 1 मार्क के हिसाब से कैलकुलेट करके आप उसको इतना टाइम दोगे किसी भी सब्जेक्ट को. मतलब इम्पोर्टेंस के हिसाब से वेटेज देना है बेसिकली. हाँ, और अपने को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है. पढ़ना सब कुछ है लेकिन ज्यादा बार एक कैटेगरी आइटम्स पढ़ने कंपैरेटिवली. ऐसा नहीं कि सब कुछ इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना. एंड 4 से 5 रिवीजन के लिए होना ही चाहिए. हाँ, 4 से 5 बिकॉज ऑडिट के अंदर ना याद नहीं होती है. सो चीजें मतलब आपको काफी टाइम लगता है वो बार बार उसको रिकैप्सुलेट करने में. तो आई विल सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट इतना टाइम तो देना चाहिए. ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही था हाउ टू प्रिपेयर मतलब फॉर दोस 1.5 डेज. बट आपने वो बता ही दिया कि उसमें भी अपना वेटेज मार्क्स के बेसिस पे करो. I'll just add that हाँ वो बिल्कुल वेटेज के हिसाब से करो. और उसके बाद अगर नहीं भी हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो. सी कैटेगरी को you should skip सी कैटेगरी एटसेट्रा. और एक चीज जनरली जैसे ऑडिट के टाइम पे रिवीजन पे मेरे साथ हुई थी 1.5 डेज में कि कुछ भी याद नहीं आ रहा था पढ़ के भी. तो वो रिवाइज करके भी ऐसा लग रहा था हर चीज की यार कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे. सो आई सजेस्ट कि अगर आपके साथ भी हो रहा है तो यू शुड नॉट गेट सैड अबाउट दैट. यू शुड कीप ऑन मूविंग फ्रॉम दैट. मतलब आप अगर आपको कुछ नहीं भी आता रहा है सो यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज लास्ट डे पे इतना सारा का प्रेशर होता है ना, क्योंकि आपको प्रीवियस एग्जाम की भी टेंशन हो रही होती है कि वो इतना गंदा गया है या फिर इतना अच्छा गया है, और फिर आगे वाले की भी टेंशन हो रही होती है. तो आई सजेस्ट कि अगर आपको ना भी याद है तब भी आप मूव ऑन करते रहो चीजों से. And if you have time left at the end of the revision period, so do take up those things, but otherwise keep on like moving. Do not hold your pace or in revising things. हाँ, मतलब हमारे साथ यही होता है. आपको यही लगेगा कि आप भूल गए, आपको याद नहीं है, तो वहां पे अगर बैठ गए तो आपका सब छूटना ही है. तो आप बैठो मत, आप रीड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस में जाता रहेगा. एग्जैक्टली. अगर आप पढ़े हो आपको पेपर में कहीं ना कहीं क्लिक कर देगा. आपको उस दिन खाली एक बार आंख से निकालना है. बिकॉज सही में मेरे को कई बार बिकॉज सही में मेरे को ऐसे लगता था कि मैं बस क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी बिना कुछ भी समझे कुछ भी करे हुए बस पढ़ रहा हूँ, कोई कुछ भी दिमाग में जा नहीं रहा है. सो आई सजेस्ट कि अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू शुड कीप ऑन मूविंग फ्रॉम दैट एरिया, नॉट प्रॉब्लम. यू शुड नॉट स्किप एनीथिंग. हाँ, बहुत नॉर्मल है. ऐसा फील होता है, ऐसा नहीं कि रैंक होल्डर्स को फील नहीं होता, सबको सेम चीज फील होता है यार. ये भी बताता नहीं है ना, पर so when I used to see toppers videos and etc everything ना, so I used to feel कि कोई बता ही नहीं रहा ये चीजें कि यार ये सारी भी चीजें आपके साथ होती हैं. So that's why I'm just keeping it out there कि यार ये होती हैं, बहुत जनरल चीजें हैं ये. हाँ. अब प्रेरित, वो जो पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करा जाए? हाउ डू यू अटेम्प्ट द पेपर इन 15 मिनट जो टाइम मिलती है अपने को पेपर के पहले, उसको कैसे यूटिलाइज करा जाए? How should we utilize? So whenever you get the question paper, so definitely आप सबसे पहले क्या करो, आप आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ो. इसके अंदर की पॉइंट्स वगैरह होते थे, वो मैं क्वेश्चन पेपर पे नोट कर लेता था विद अ पेंसिल और समथिंग. सो उसमें नोट कर लिया कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये कौन से एस्से से रिलेटेड है या फिर ये कौन से प्रोफेशनल एथिक्स के पार्ट से रिलेटेड है, तो वो चीज नोट कर ली. और कहीं पे कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं तो वो नोट कर लिए. So I used to try to make sure कि ऐसे में around out of 6 question I used to make sure कि at least ये मैं 2 क्वेश्चंस के लिए कर लूँ, 2 या फिर 2 से जितने भी ज्यादा हो जाए, बट मिनिमम 2 क्वेश्चंस के लिए तो होना चाहिए. what this does is कि आप जब एग्जाम में जाते हो तो जब आपके पास टाइम नहीं बचता ना पेपर में, तब आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली आपको क्वेश्चन पूरा दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिकैप्चुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेरे को क्या आंसर लिखना है. आप बस क्वेश्चन का थोड़ा सा एंड वगैरह पढ़ सकते हो या फिर पार्ट पढ़ सकते हो. मतलब you do not have to read the whole question properly with so much attention. You can just go through the question and directly see the answer जो आपने उधर लिखे हैं, और आप उसको
उसको अपनी प्रॉपर एक आई गेस क्या प्रॉपर फॉर्मेट में, हाँ प्रॉपर फॉर्मेट में आप उसे अपना उतार दो आप आंसर के अंदर, तो आपको काफी टाइम सेव हो जाता है. सो द पर्पज ऑफ 15 मिनट शुड बी कि आप अपनी बेसिकली जो आप 3 आवर्स की जो आंसर राइटिंग का पीरियड होगा, आप उसके अंदर आप एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हो. One of the purpose is that then some people do this also, they try to read all the 6 questions. It doesn't help at all because I'll tell you मतलब मेरे साथ ये चीज बहुत बार हुई थी, क्योंकि कभी कभार ना पेपर क्वेश्चन पेपर ऐसे आ जाते हैं कि जिसके अंदर छोटा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, बट उसके अंदर ऐसा लगता है कि 3 या 4 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी. बिल्कुल. सो उस वक्त दिमाग खराब, उस वक्त थोड़ा सा ऐसे बैक ऑफ द माइंड ऐसे लगने लगता है यार कि यार मैं इस पेपर में 40 भी ला पाऊंगा क्या. तो आपको वो कभी भी नहीं लगना चाहिए. सो आई विल सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग दैट वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू लीव, आई विल सजेस्ट कि यू राइट डाउन द आंसर्स फॉर लाइक 2 क्वेश्चंस, तो आपको उसमें काफी हेल्प हो जाएगी. और उसके बाद फिर आप बेसिकली जो आपको ये छोड़ना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको इफ यू आर ट्राइंग टू राइट डाउन द आंसर्स एंड यू फाइंड अ क्वेश्चन कि आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, सो आई विल सजेस्ट इज कि आप उस क्वेश्चन को मार्क कर दो कि इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में देखूंगा जब मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा. अभी तो फॉर एग्जांपल इफ क्वेश्चन 1 को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट. फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप सारे आंसर्स वगैरह लिखने की कोशिश कर रहे हो एंड यू फील कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, सो जस्ट एनसर्कल दैट क्वेश्चन एंड यू नो स्किप दैट क्वेश्चन, कि आप इस वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में देखोगे, बिकॉज नाउ दिस यू नो दैट दिस क्वेश्चन डजंट हैव you don't have the option कि आप इसके अंदर मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे इस क्वेश्चन के अंदर. So skip that question. So that was the first 15-minute strategy कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उधर ही पेपर वगैरह के ऊपर वो कर लो. And so yeah, that was my बहुत strategy. ठीक चीज बोला. मतलब होता क्या है कि 2 अप्रोच हो सकते हैं, या तो आप 6 के 6 क्वेश्चंस देखो और कौन सा एलिमिनेट करना करो, बट उस समय हो सकता है आपको अपरेंटली लगे आता है लेकिन लिखने लगो तो हो सकता है नहीं आता है. सो मेरा भी तो ये बहुत जन करते हैं, बट मेरा पर्सनल जैसा प्रेरित करता है वही था कि अपने 2-3 आंसर रेडी रख लिए 15 मिनट्स टाइम पे, तो एज एंड व्हेन अपने को पेपर मिलता है लिखने को, संग वी जस्ट शूट विद द आंसर्स. वहां पे अपने को वापस क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना नहीं है, तो वहां अपना 15-20 मिनट्स विद इन द एग्जाम टाइम बच जाता है. मतलब बेसिकली टाइम को मॉनिटर करना है, कोई भी आंसर को अनड्यूली एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना ताकि वो दूसरे आंसर छूट जाए या उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाए. दैट इज पॉइंट 1. एंड बेस्ट टू वर्स्ट का ऑर्डर होना चाहिए कि जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप पहले कर दो ताकि आपका एक इंप्रेशन सेट हो जाए. एंड आप कोई भी आंसर छोड़ना मत, क्योंकि ऑडिट में हो सकता है आपको बहुत बार लगे बहुत कुछ नहीं आता है, बट अगर आपको नहीं आता है 80% लोगों को भी नहीं आता है. पेपर टफ होता है, वो सबके लिए टफ होता है, तो आप अटेम्प्ट करो. ऑडिट ऐसे भी सब्जेक्टिव है, बट आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, एंड साथ में सिस्टमैटिकली आप पेपर अटेम्प्ट करना. नेगेटिव मार्क्स सही नहीं, यू विल बी एबल टू स्कोर वेल. तो प्रेरित, थैंक यू ये सारे इनपुट्स के लिए. अब लास्ट एक क्वेश्चन मेरा आता है आपसे. इतने डिस्कशन की, अब आप टॉप आइटम्स बताओ जो आप सजेस्ट करोगे दीदी की फोकस पॉइंट्स सो दैट स्टूडेंट्स गेट 80+ इन ऑडिट. क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? So one thing I'll suggest is कि एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी डेफिनेटली होनी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप MTPs वगैरह है वो आप प्लीज सॉल्व करके देखो, बिकॉज जनरली क्या होता है ना, हम बचपन में तो मतलब क्लास 12 तक हमने वो करी होती है, आदत होती है कि हम सब कुछ लिख कर देख रहे होते हैं. बट अब क्या होता है क्लास 12 के बाद से वो लिखने वाली आदत छूट चुकी है कि हम कुछ भी लिख कर देखें. सो आप कितना भी पढ़ लोगे, जब आप कितना भी पढ़ लो, आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लिख के देखोगे कि पेपर पे एक्चुअली में क्या उतर रहा है. तो आई सजेस्ट कि आप जो भी, बिकॉज नॉर्मल स्टडीज के अंदर तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप रिटन प्रैक्टिस कर पाओ, और कोई कर नहीं पाता है. मतलब ऑब्वियसली इट इज सजेस्टेबल कि आप कर लो, बट इतना टाइम नहीं होता है कि आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं और आप उसके एक या 2 सब्जेक्ट के लिए पूरा लिख कर देखोगे. सो आई सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर दो और दोनों को बहुत अच्छे से लिख कर देखो, और उसमें सारे क्वेश्चन लिख कर देखो. डू नॉट लीव द ऑप्शनल पार्ट, ऑप्शनल क्वेश्चन ऑल्सो. सो आपकी प्रैक्टिस, एक तो रिटन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए. एंड सेकेंड इज आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से लेनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल जब आप क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. डू नॉट ट्राई कि आप अपना आंसर उतार रहे हो, आप क्वेश्चन को समझो आप पहले कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑफ योर नॉलेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. थर्ड पॉइंट आई सजेस्ट कि अगर आपको कुछ भी समझना है, whenever you are studying also and whenever you are in the paper also, so try to think like an auditor. So मतलब ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है कि आप when you think from that perspective, it really helps कि क्या करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर
वो नॉर्मल किसी ऐसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है. सो जस्ट थिंक कि अगर आप उस ऑडिट की सिचुएशन में होते तो आप क्या क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स मांगते, क्या चीज पूछते उनसे. सो वो आप, और आपके जैसे एजर्शंस कौन कौन से आपके फुलफिल होंगे अगर आप जो भी टॉपिक्स चीजें मांग रहे हो उनसे. तो आप जब वो चीजें माइंड में रखोगे सो आपको काफी हेल्प होगा पेपर के अंदर, अगर आप भूल भी जाओ तो कुछ भी. सो दीज थ्री थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू मेक साथ श्योर कि. में मेरे को ऐसा लगता है कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, तब अंडरलाइन कीवर्ड्स करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑडिट इज मोर ऑफ लैंग्वेज ओरिएंटेड. तो वहां पे आप क्या लिख रहे हो, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं? सो I'll टेल वन थिंग कि ये जो अंडरलाइन वाली चीज है यार, ये मैंने आईपीसीसी में बहुत करी थी, बट सीए फाइनल में आके क्या हुआ था कि मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी, मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे थे जनरली हाँ किसी हाँ भी हाँ, ये भी है, सब्जेक्ट के अंदर. राइट. हाँ, सो आई सजेस्ट कि ट्राई कंप्लीटिंग द पेपर फर्स्ट, उसके बाद अंडरलाइन के ऊपर के लिए बिल्कुल जाना आप लोग. सो यू नो पीपल स्टार्ट डूइंग कि आप पहला क्वेश्चन लिखकर उसके बाद ही अंडरलाइन करना चालू कर देते हो. यार अंडरलाइनिंग का कोई फायदा नहीं है अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे. सही सो बात है. हाँ, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया था, दो आई डिड इट इन आईपीसीसी, बट एंड आई सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है आप डेफिनेटली ये चीज करो, इट डेफिनेटली हेल्प्स. बट पहले पेपर कंप्लीट करो मैं तो यही सही सजेस्ट में करूंगा. हाँ, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होते हैं, कंप्लीट करना बहुत बड़ा पेपर चैलेंज है. एग्जैक्टली, एमसीक्यूज वगैरह में कभी टाइम लग जाता है, आपको सोचना पड़ जाती है काफी चीजें, सो कंफ्यूज हो जाते हो आप. तो आई विल से कि हाँ, तो डेफिनेटली. थैंक यू प्रेरित फॉर योर इनपुट्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. होप थैंक ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगा. एंड फॉर ऑल दोज वाचिंग आउट दिस वीडियो, watch out for the watch out for Anirudh Ramesh's input on this as to how to improve further on audit. Thank you. Audit as a subject is probably gets pretty boring after a point of time because it is entirely theoretical in nature. I personally didn't enjoy studying audit as much as I did with the other subjects. So why not check out this new website called EdGames? EdGames is an interactive platform where you can evaluate your examination prep by attending quizzes and competing with your friends. And the best part about it is they are not restricted only to audit. They cover multiple subjects across the entire CA curriculum. So we'll be dropping in a link in the description box below. Do check that out and let us know how you find this entire gamification experience about the CA final portions and across the CA curriculum.